Hello students. So we are here with the last lecture of class 12th NCRT history chapter number 15, framing the constitution. So first we'll know what are the things that are present in this chapter, then we'll proceed further. So we'll be following the same process that we are doing in the class. First we'll be seeing the question answers. Here we have objective resolutions. There's something about objective resolution in this chapter. Then we have the term minority. So minority, like in India we have in Muslim, except from Hindu, all other religions are considered as minority: Muslims, Jain, Buddh, Sikh, Parsi, Christians. So we have something about the right of the minorities in this chapter. Then we have power to the provinces. What are the power that were given during the framing of constitution to the states, and the power that were with the center, the three list, center, state, and concurrent list? What were the debates that were done while framing the constitution? After that, we have debate on the language. Today, we are not having any official language. Hindi is not the national language. Sorry. Uh, we are having an official language but not having a national language. So Hindi is not the national language of the country. Earlier it was uh, proposed by Mahatma Gandhi to take Hindustani as the national language of the country. So what were the debates while framing the constitution? We'll be seeing this also. Then we have historic forces, vision of the constitution. What were the various forces that give the direction to the constitution makers for making a constitution? We are having freedom of speech and expression. We are not having any religion superior. So what were the forces that provide the vision for the constitution? What were the oppressed groups such as the scheduled caste, scheduled tribes? We'll be reading about them, and what were their demands and the debates in the Constituent Assembly. Power for strong center. Who were debating for strong center and who were in the favor of giving more power to the states? Today we are having a federal federal system in our constitution, where quasi federal we can say, where the our center is strong. Okay, we have division of power but we are having a strong center. You might have studied in the political science. And language controversy, what was it? So these are 8 questions, and if you prepare these 8 questions, then the chapter would be completed. I don't think that any question apart from these 8 questions would be coming in the board examination. It would be like out of these 8 questions that you will be seeing a question, or if any would be there, I'll be telling you while teaching in the chapter itself that this is the possibility that this question also come. Okay, so let's start the chapter. And we are having 25 pages in this chapter, so I'll try to make the video as small as possible so that it would be easier for you to complete that. So while making the constitution, you all know that it came into effect in 26 January 1950, and it is the longest constitution, and it is very complex. The complexity is due to the size and diversity of the country. We are having so much religion, caste, gender, so much diversity. Tribals are there, scheduled caste, scheduled tribes. Okay, so it is due to these reasons that we are having complexity in our constitution, but also uh, we are deeply divided on the basis of the factors that I told you earlier. I'll be teaching you this chapter only with the highlights. Okay, you may read it completely at your home as we are doing in the class itself. So I'll be bilingual while teaching you. No, the highlights are not visible correctly, so you all are having highlights with you. I'll be using the book to make it easier for me. Please allow me a second. We are having diversity. Okay, then wounds of the past. This, while making the constitution, if we have to forget the bounds of the past and come together and start again. And while making the constitution, it was in December 1946 that the Constituent Assembly had its first meeting, and it was in 9th December. First meeting of the Constituent Assembly was held, and it was till November 1949, and it took 2 years and 11 months and 18 days for the Constituent Assembly to prepare the constitution. It was done in 11 sessions, and with sitting spread over 165 days of sitting was there. 2 years, 11 months and 18 days it took, but
only it was for 165 days that the Constituent Assembly sat and discussed. Okay, there were a lot of committees that were discussing various parts, like the drafting committee, which was preparing the draft of the constitution. In this chapter, we'll just be seeing the history and what were the various debates that were done while making the constitution. A tumultuous time. Tumultuous meaning like we can say in Hindi, उतार चढ़ाव वाला टाइम थोड़ा सा था ना उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. सो लेट्स कम फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था ना, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा हमने कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में. मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट था. सुभाष चंद्र बोस इसमें इन्वॉल्व थे. फ्रीडम के लिए आर्म स्ट्रगल उन्होंने यूज़ किया. फॉरेन एड जापान की हेल्प के थ्रू उन्होंने कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आर्म रेजिस्टेंस किया. इंडिया की रॉयल इंडियन नेवी इसने भी प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ. वर्कर्स का प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिला, पीजेंट का प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिला. जब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, तो एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ मुस्लिम लीग थी. जब हमने देखा कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया था, ठीक है, कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया था इनके बीच में, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया था. फिर हमें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स वगैरह देखने के लिए मिली थी 1946. और फिर आपको पता है कैसे ब्लड शेड हुआ था, ठीक है ना. तो दोनों साइड ब्लड शेड हुआ था. और 1947 15 अगस्त 1947 जब आज़ादी मिल भी गई थी, जॉय और होप था. बट दूसरी तरफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान, दे वर हैविंग अ सर्टेन फियर इन देयर माइंड, ठीक है. अ फियर ऑफ डेथ, यहाँ पे देखते हैं सडन डेथ, स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज थे. मुस्लिम्स वेंट टू पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द हिंदूज एंड सिख्स वर कमिंग टू इंडिया. तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम भी हमें देखने के लिए मिली. अब प्रॉब्लम आती है प्रिंसली स्टेट की. देखो जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश ने इंडिया और पाकिस्तान में अपनी प्रोविंसेस तो डिवाइड कर दी थी ब्रिटिश इंडिया की, बट प्रिंसली स्टेट जो कि उस टाइम पे इंडिया की 1/3 थी, ठीक है, उनको कह दिया कि आप या तो इंडिया के साथ या फिर पाकिस्तान या इंडिया किसी के साथ भी आप जा सकते हो. तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन कराया था प्रिंसली स्टेट का, ठीक है ना. तो एक ही प्रॉब्लम खड़ी करके चले गए थे वो, बिना प्रिंसली स्टेट को बांटे ब्रिटिश यहाँ से निकल गए थे. तो प्रिंसली स्टेट्स 1/3 थी यहाँ पे, ठीक. और नवाब महाराजा ये सब आते थे. लेफ्ट ऑलमोस्टली फ्री टू रूल, अपने आप रूल करने के लिए उन्हें छोड़ दिया था. फिर रिकन्सिलेशन की थी किसने, बातचीत की थी सरदार पटेल ने, ठीक है ना. ब्रिटिश चले गए थे इंडिया छोड़ के. अब यही सब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि अब प्रॉब्लम्स. सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बने, कौन कौन लोग थे, क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बने थे या नहीं. एक बार जल्दी से हेडिंग्स देख लेते हैं जैसे हम करते हैं क्लास में, ठीक है ना. फिर कौन कौन सी डोमिनेंट वॉइसेस थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, किसकी ज़्यादा वॉइसेस जो थी हमें देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे डोमिनेंट कौन कौन थे, ठीक है ना, और कौन क्या काम कर रहा था, किसको क्या जिम्मेदारी मिली हुई थी, ये देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का विजन कैसा था कि भाई डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सॉवरेन सोशलिस्ट, किसको क्या राइट्स दे रहे हैं, विजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, वही वाला हमने डिफरेंट कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ब्रिटेन से लिया है, कुछ यूएस से लिया है, ठीक है. तो ये सोर्स उसको लेके है और सोर्स ये आई भी है, इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया दूसरी वीडियो में, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा द विल ऑफ द पीपल, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कहीं ना कहीं लोगों की जो विल थी उसको ही फुलफिल कर रहे थे, जो भी वो उसमें रूल्स रेगुलेशंस लॉज बना रहे थे, ठीक है ना. फिर सोर्स वगैरह आ जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज, अब ये तीसरा डिफाइनिंग राइट्स, इसी तीसरी हेडिंग है. 3.1 में ही हम देखेंगे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राइट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग बात होगी और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बात होगी. इसमें देखेंगे दोनों के लिए. कुछ लोग फेवर में कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, तो उनके नाम आएंगे, जो अगेंस्ट थे उनके नाम आएंगे. फाइनली डिसीजन क्या हुआ वो हमें पता चल जाएगा. सिंपल ऐसा हर एक टॉपिक को लेके इस चैप्टर में ऐसे ही है, ठीक है ना. जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गया, केवल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिए थे ना नेहरू ने, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है अभी चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना. जैसे हमारा प्रियम्बल है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, बस वो प्रियम्बल से पहले जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह सकते हैं बस हम, ठीक है. केवल हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है ना. तो अभी हमने देखा राइट्स की बात हुई, ट्राइबल के राइट्स की बात हो जाएगी. वी वर ऑप्रेस्ड फ्रॉम फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यहाँ पे डिप्रेस क्लास में दलित्स की बात हो जाएगी, बी आर अम्बेडकर और कौन कौन सपोर्ट में थे. फिर बात आती है किसको कितनी पावर मिलेगी, सेंटर के पास कितनी पावर, स्टेट के पास कितनी पावर, इसका डिस्कशन है. कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में. साथ में मैंने देखो ये 30, 37, 38 ये मैं मार्क किया हुआ, ये MCQ है, ये आपको पहले ही पता है. लैंग्वेज का डिबेट होता है,
कौन लोग हिंदी को फेवर कर रहे थे, कौन लोग हिंदुस्तानी कह रहे थे, कौन लोग कह रहे थे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो ये रीजंस आपको लर्न करने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं एक एक टॉपिक बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आंसर्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, बस इतना है। जल्दी से हम अब इसको डिस्कस करते हैं। आई विल नॉट बी सीइंग द टाइम नाउ। वी वर एट फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उतार चढ़ाव वाला टाइम हमने देखा। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखें, लोगों को जब वोटिंग का अधिकार मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से पहले, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए इट वाज नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, वोटिंग केवल रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी। 10 से 15% लोग ही थे जो वोट कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या था, ये वोट करके तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को चूज कर रहे थे ना अपना, जैसे हमने देखा था ना 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 1937 के इलेक्शन जब हुए थे ना, 8 कांग्रेस जीत गई थी। तो इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर वगैरह बने थे इन प्रोविंसेस में, ये लोग चूज करते थे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मेंबर कौन जाने वाला है। मान लीजिए हमारे पास 11 प्रोविंसेस थी, ठीक है। हर एक प्रोविंसेस में अलग अलग मेंबर्स होंगे, किसी में 200, किसी में 300, ठीक है, किसी में 150। तो अब ये 200 में से मान लो, अब इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर, एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ टोटल हमें 300 मेंबर लेने हैं, तो 200 के हिसाब से ये 20 भेज देंगे, 300 के हिसाब से ये 30 भेज देंगे, 150 के हिसाब से 15 भेज देंगे। ऐसे करके अलग अलग प्रोविंसेस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने चूज़ किए। तो एक ये इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो ये लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ना, ये लोगों ने नहीं चूज़ किए। तो ये किसने चूज़ किए, एक सेकेंड, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने चूज़ किया। तो फिर कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट देता है ना, तो ये कहा जाता है देखो पीपल जो थे उन्होंने इलेक्ट किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया, तो इनडायरेक्टली लोगों ने ही इलेक्ट किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग आते थे ना, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है ना, डिफरेंट कास्ट, तो डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, डिफरेंट लैंग्वेज, तो हर एक डाइवर्सिटी यहाँ पे अकोमोडेट की जा रही थी। ये कहा जाता है कि 82% तो मेंबर कांग्रेस के ही थे, बट उस टाइम पे हमें ये समझना होगा कांग्रेस में भी डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, तो सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे। तो जो क्रिटिसिज्म था कहीं ना कहीं कि इस बात का कि भाई केवल कांग्रेस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है, केवल कांग्रेस ही है, बट कांग्रेस उस टाइम पे खुद ही एक हेट्रोजीनस बॉडी थी। तो ये ध्यान में रखना बच्चों बस, ठीक है ना। अब इसको लेके एक PYQ भी आया हुआ है, तो हम देखेंगे क्या, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे उसमें डाइवर्सिटी थी मैंने आपको बता दिया, 4 एग्जाम्पल बताए, रीजन, रिलीजन, ये लिखना उसमें, ठीक है ना, और उनके ओपिनियन को, ठीक। अब ये बाकी जो भी हाईलाइट किया है यहाँ से पॉइंट्स हम बना लेंगे। तो ये भी हमने देखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था जब इलेक्शन हो रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, उसको डोमिनेट करी थी, यही मैंने आपको बताया। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे जब मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग ने कहा था, मुस्लिम लीग तो अलग ही डिमांड कर रहा था नेशन की, उसने बॉयकॉट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसने कहा कि भाई मैं तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगी, आप अपना देख लीजिए। सोशलिस्ट थे, स्टार्टिंग में तो वो अनविलिंग थे किस चीज़ को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी बन रही है, कह रहे कि तो ब्रिटिश के अंडर में बन रही है ना। देखो 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में ही थे हम। तो ये कह रहे थे भाई ब्रिटिश की क्रिएशन है, कैसे हम अपने जो है खुद के लिए राइट्स बना पाएंगे, ब्रिटिश को हमें हर चीज़ के लिए पूछना पड़ेगा। इस चीज़ को लेके इनिशियली देवर अगेंस्ट इट, बट बाद में जब पता चला था ना कि द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर वर्किंग फॉर द विल ऑफ द पीपल, उसमें ब्रिटिश का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बाद में सोशलिस्ट भी साथ ही आ गए थे, ठीक है। स्टार्टिंग में कह रहे थे, तो हमारा देखो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सोशलिस्ट भी थे, यहाँ पे 82% कांग्रेस के मेंबर थे। बट अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाद में क्या सोशलिस्ट लोग भी आ गए, लैंडलॉर्ड्स भी थे इसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कम्युनल पार्टीज़ भी थी जो धर्म के बेसिस पे पार्टी बनी थी, सेक्युलर पार्टीज़ वो पार्टी जो सभी धर्म को एक साथ लेके चलने वाली सभी पार्टीज़ थी। तो डिबेट, उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो पब्लिकली डिबेट होते थे, ठीक है, जनता के सामने सब कुछ, जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स थे किसी भी डिसीजन को लेके, कि भाई माइनॉरिटीज़ को कितनी पावर देनी है, SC को क्या देना है, ST को क्या देना है, मुस्लिम कल्चरल राइट्स, ये सब पब्लिकली डिबेट होता था, ठीक है ना। और ओपिनियंस जो थे एक्सप्रेस बाय द पब्लिक, ठीक है ना, ये जो ओपिनियंस थे ना, ये इन्फ्लुएंस होते थे कहीं ना कहीं जनता क्या सोचेगी, ठीक है, उससे भी इन्फ्लुएंस होते थे। नेक्स्ट इज, अब न्यूज़पेपर में प्रपोजल्स पब्लिकली डिबेट होते थे, क्रिटिसिज्म भी होता था चीज़ों का, क्रिटिसिज्म काउंटर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है ना, प्रेस में सब कुछ चीज़ें छप रही हैं,
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे पब्लिक का भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, पब्लिक के व्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता था कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या चाहेगी कि भाई हमारी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन हो। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्या चाहेंगी कि उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट हो। ठीक है, उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले। दलित्स क्या चाहेंगे कि हमारे साथ जो कास्ट ऑपरेशन हो रहा है वो ना हो, रिजर्वेशन मिले हमें सीट्स का। ठीक है ना, तो सब अपने अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस करते थे, वो डिबेट होते थे और फिर एक कंसेंसस अचीव किया जाता था जिसमें सबकी सहमति होती थी, वो पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए जाते थे। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कौन देखता था कि भाई सबका डिबेट हो रहा है तो लड़ाई झगड़े ना हो जाए वहाँ पे। ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा, ठीक है ना, ड्राफ्ट हो जाएगा कि रफ कॉपी, किसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ड्राफ्ट बना था, फिर जब सबने साइन कर दिया तो वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो अब इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैंने बताया 300 मेंबर्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है ना, सब अब इन 300 में से 6 के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स थे। इन 6 का नाम याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, तो आप इसको कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। JVR याद कर लो, JVR से फर्स्ट 3 इज JVR, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर नेहरू हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किस चीज़ का रेजोल्यूशन पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आगे आएगा भी चैप्टर में कि क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दूसरा जो नेशनल फ्लैग है ना हमारा, उसमें हॉरिजॉन्टल है, ट्राई कलर है, सेफ्रॉन वाइट और डार्क। ठीक है ना, और बीच में फिर व्हील वगैरह है, तो ये भी रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। सरदार पटेल ने क्या पास किया, इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स ड्राफ्ट की, जैसे रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ऐसी इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की। ठीक है ना, और अगर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स होते थे किसी भी टॉपिक को लेके तो उसमें ये वर्क करते थे। ठीक है, ताकि एक जो है कंसेंसस अचीव किया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। देखो जैसे सबसे पहले मिली थी ना 9 दिसंबर को 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली बिना वोटिंग के। पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो ये आता है, इसमें आपकी बुक में नहीं है तो ये बुक में नहीं है तो आएगा नहीं, बट ये आएगा कि प्रेसिडेंट कौन थे। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो दोनों मैंने सर्कल कर दिए। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है ना, BR अम्बेडकर। अगर कोई भी आ जाता है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, से बच्चे से भी BR अम्बेडकर कराते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या ध्यान देते थे कि भाई डिस्कशंस जो हो कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ सब्सटेंशियल डिस्कशंस हो। ठीक है ना, ऐसी फ़ायदे वाली बात हो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में हम उन चीज़ों को ऐड कर सकें। ठीक है, डिस्कशन सही डायरेक्शन में हो, ये ध्यान देते थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस कांग्रेस ट्रायो के अलावा अब एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट, लॉयर भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, BR अम्बेडकर। ठीक है ना, इन ये हालांकि पॉलिटिकल अपोनेंट थे, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के व्यू पॉइंट्स नहीं मैच करते थे बहुत सारी चीज़ों को लेके। तब भी हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी ने इंसिस्ट किया कि आप कैबिनेट, जब है ना हमारा ये बना था ना यूनियन कैबिनेट इंडिपेंडेंस के बाद, इनको लॉ मिनिस्टर बनने के लिए महात्मा गांधी ने बोला था। हालांकि भले ही एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों में एग्री ना करें, बट इनको पता था सामने वाले का टैलेंट क्या है, तो एक दूसरे के टैलेंट की रेस्पेक्ट भी की जाती थी। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक, इनके साथ 2 और लोग, देखो हमने 6 बोला था, अभी 3 तो हमने JVR पढ़े, 4th हमारे BR अम्बेडकर आ गए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, उसके बाद DPSP आएगा, एक रफ तैयार कर रहे हैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक रफली इन्होंने तैयार कर दिया। बाद में सबके साइन हो गए इस पर। ठीक है, वो फिर हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है, BR अम्बेडकर थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सर्विंग विद हिम वर 2 अदर लॉयर्स, इनका साथ दे रहे थे 2 और लॉयर, जिसमें थे हमारे KM मुंशी, ये गुजरात के थे। ट्रिक बना लेंगे कुछ भी, ठीक है ना, जैसे आप याद कर लेंगे कि मुंशी जी हैं वो गुजरात से हैं। ठीक है, मुंशी जी गुजरात से हैं और अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर ये मद्रास के हैं। कुछ भी ट्रिक बना लो, जैसे मेरा दोस्त था रेणुगोपाल अय्यर, ही लिव्स इन मद्रास। तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, देखो थोड़ा सा बस याद करने के लिए। अदर बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे नेम्स होंगे बच्चों, ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रिक बना के मैं मुंशी जी पूछूँ तो आपको गुजरात याद आ जाएगा, मैंने अपने फ्रेंड की बात की है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये अय्यर कृष्ण स्वामी अय्यर इज़ फ्रॉम मद्रास। ठीक है, बोथ हेल्प इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन अपार्ट फ्रॉम दिस 6 members, assistant was also given by 2 civil servants who were also there. One is BN Rao who was कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या एडवाइस किया था कि हमें अदर दूसरी कंट्रीज़ है, किस कंट्री से
क्या पार्ट लेना है हमें कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर जैसे हमने ले लिया अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से ले लिए, तो ही वॉज BN राव, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के। जो देखो मैंने ये MCQ भी मार्क किया भाई, 11, 12 ड्राफ्टिंग कमेटी, ये MCQ है, ये साथ साथ याद करके चलना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। जैसे चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, SN मुखर्जी। SN मुखर्जी का क्या काम था, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते ना, ज़्यादातर लॉयर थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो लॉयर की लैंग्वेज थोड़ा सा होता है ना कि लीगल लैंग्वेज, उसको सिंपल, लीगल लैंग्वेज को सिंपल करने का काम SN मुखर्जी का था। ये ड्राफ्ट्समैन थे चीफ, इसे याद रखेंगे। और ये सब जो डिबेट डिस्कशन हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अब ये 11 बल्कि वॉल्यूम्स में तैयार होकर आ गए। ठीक है, देखो हमने पहले पढ़ा था 11 सेशंस थे, अब 11 बल्कि वॉल्यूम्स हो गई। कहाँ पढ़ा था, ये रहा 11 सेशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 11 बल्कि वॉल्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डोमिनेंट, आफ्टर डोमिनेंट वॉइस वी आर हैविंग, देखो अगर इसमें कुछ है, BR अम्बेडकर प्रिसाइडिंग ओवर अ बिल, हिंदू कोड बिल को प्रिसाइज कर रहे हैं BR अम्बेडकर, तो MCQ बन सकता है, हु प्रिसाइज द मीटिंग ऑफ हिंदू कोड बिल, तो BR अम्बेडकर, ऐसे MCQ बन सकता है। तो साइड वाली इमेज इग्नोर नहीं करेंगे, वहाँ से MCQ बन सकता है। ठीक है ना, या डायरेक्ट इमेज भी दे सकते हैं। विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या विजन था, क्या दूरदर्शी, क्या सोच थी उनकी, कैसा बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर को हुए। जवाहरलाल नेहरू ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई मेरा नहीं है केवल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तुम सबका भी है, 13 तो 13 से याद कर सकते हैं 13 डेट 1946। देखो हालांकि 9 दिसंबर 1946, 4 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी फर्स्ट मीटिंग के लिए, उसके 4 दिन बाद ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को पास कर दिया गया। इसमें आदर्श थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आइडियल्स थे, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा बच्चों, ये PYQ भी आया हुआ है, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है ना, और आप फिर इसे बताएंगे ये पास हुआ, दीज आर द थिंग्स इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिसे प्रियम्बल याद है बच्चों, क्लास में प्रियम्बल याद कराया हुआ, 9 से याद करा रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्नली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर। तो देखो यहाँ पे ना सोशलिस्ट नहीं आना चाहिए वर्ड इसमें, बस सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है ना, देखो इंडिपेंडेंट है, सोवर्न है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर, ये 3 वर्ड नहीं है, क्योंकि सेक्युलर और सोशलिस्ट ये तो हमारा अमेंडमेंट हुआ था बाद में 42nd, उसमें ऐड हुए थे, तो ये तो बाद में आए थे हमारे प्रीएम्बल में, ये जो 2 वर्ड है ना। बट आप ये याद रखेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक को छोड़ के क्या क्या है, इंडिपेंडेंट, सोवर्न और रिपब्लिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, सोवर्न, एक्सटर्नल पावर किसी का भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, उससे कोई मतलब नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, इसलिए हम रिपब्लिक हो गए। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना बात अपने प्रीएम्बल में, जस्टिस, ठीक है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये सब एडिक्वेट सेफ गार्ड होने चाहिए किस किस को, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड, ट्राइबल्स, डिप्रेस्ड, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन्हीं के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे हम। चैप्टर में माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बैकवर्ड कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, SCs के बारे में, STs के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिप्रेस लोग हो गई है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये सब हम देखने वाले हैं चैप्टर में आगे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, इसमें बताया कि हम अलग अलग, ये वाली सोर्स मैंने अलग से एक्सप्लेन किया बच्चों, बड़ी सोर्स है PYQ में, यहाँ से आई है, यहाँ से लास्ट तक, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर आपके पास आ जाएगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कराए हैं, उसका लिंक अलग से दे दूंगा, देख लेना बाद में इसको। और एक और सोर्स है दूसरी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये भी मैंने पहले बनाई हुई है वीडियो, तो वही देख लेना। ठीक है, टाइम सेव होगा यहाँ पे। अब नेहरू जी की स्पीच सोर्स 1 में, तो नेहरू जी क्या क्या बातें करते हैं तो एक बार देख लेना। ठीक है, कि हम कॉपी नहीं करने वाले भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हम अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, DPSP, ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। ठीक है ना, कि फेडरलिज्म किससे लिया हमने, क्वासी फेडरल है कनाडा से, तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की अगर अपनी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, डिफरेंट वर्ल्ड में रिवॉल्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, तो हम उनसे मैकेनिकली कुछ भी चीज़ बोरो नहीं करेंगे, सीधा सीधा उसको उठा के हमने एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया। पहले उसको डेलिब्रेशंस होंगे, चर्चाएं होंगी, डिस्कशंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कोई भी चीज़ लेंगे हम, डिस्कशंस वगैरह होंगे, ठीक, सिस्टम गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिश होगा हमारी कंट्री में, ठीक है, उसको लेके
क्या बात कही कि इट शुड फिट इन द टेम्पर ऑफ आवर पीपल, भाई हमारे लोगों के अकॉर्डिंग लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा हमको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। दूसरे हमने कंट्रीज से कुछ भी चीज़ ली ना अगर, तो इट शुड फिट इन द टेम्पर ऑफ आवर पीपल, और उसको एक्सेप्टेबल बना देंगे, उसमें चेंजेस लेके आएंगे, डायरेक्टली कुछ भी चीज़ कॉपी एज इट इज़ नहीं करेंगे हम। वेस्ट के अचीवमेंट्स और फेलियर से दोनों से सीखेंगे हम, और वेस्टर्न नेशंस को हमसे सीखना चाहिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट किसी की चीज़ तुमने कॉपी कर ली, थोड़ा सा ना उसमें मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है ना। तो यही नेहरू जी ने कहा कि हम दूसरों से ले रहे हैं चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ है, ऐसा तो है नहीं डेमोक्रेसी तो दूसरे कहीं पहली बार कहीं आ गई, तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम डेमोक्रेसी के अलावा कोई नई चीज़ ईजाद कर देंगे, जो अच्छी चीज़ है उसे तो लेंगे ही ना हम, ठीक है ना। तो लिबरल आइडियाज़ डेमोक्रेसी के ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे, बट हमारी कंट्री में सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर गरीब सबका साथ, सबका विकास वाली बात, ठीक है ना। तो जितने भी आइडियाज़ हैं दूसरे कंट्रीज से ले रहे हैं, उनको रीअडेप्ट करेंगे, रीवर्क करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये नेहरू जी ने कहा था, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्टली हमने चीज़ों को कॉपी किया हुआ ये वो, तो यहाँ से जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनसे आप कुछ पॉइंट्स जनरेट करेंगे और आंसर बन जाएगा। विल ऑफ द पीपल, देखो एक कम्युनिस्ट लीडर है सोमनाथ लहरी जी, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी तो ब्रिटिश के अंडर में थे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले आपको अपने आप को फुल्ली फ्री करो, ठीक है ना। ये जो है इंटरिम मतलब टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे हैं इसको, ठीक है, वाज इन प्लेस बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन, देखो चाहे भले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली ना, ये वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शन में ही चल रही है, क्योंकि 1946 में बनी थी। तो ये किसने कहा, सोमनाथ लहरी ने। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैंगिंग ओवर डेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखो हैंगिंग ऐसे याद कर लो, अरे एक सेकेंड पोज तो नहीं हुआ, नहीं। तो सोमनाथ लहरी जी ने कहा कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हाथ जो है हमारे सर पे अभी भी लहर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सर पे, ऐसे करके याद कर लो। जो ट्रिक्स कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, बट मेक श्योर किसी की डिसरेस्पेक्ट ना हो इसमें। सोमनाथ लहरी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ठीक है, हैंगिंग ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही बात कहते हैं 1946 में बना है। तो हम कुछ भी चीज़ वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। वी आर वर्किंग द प्लान्स ऑफ ब्रिटिश, तो ये बात कहते हैं सोमनाथ लहरी जी। तो इसको काउंटर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पे सोमनाथ लहरी जी का ये जो सोर्स है ये मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसे देख लेना आप। तो इसमें यही कहते हैं कि आपकी बात सारी ठीक है कि भाई हम ब्रिटिश के अंडर में वर्क कर रहे हैं, ये सब ठीक है ना, ब्रिटिश के प्लान पे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसको काउंटर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, नेहरू एडमिट करते हैं ठीक है तुम्हारी बात कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का हैंड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बर्थ में, बट एक बात तो बताओ मुझे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है, जो भी हम लॉज बना रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, एक बात बताओ। तो ये कहते हैं इट इज़ द विल ऑफ द पीपल दैट इज़ बीइंग फॉलोड, लोग क्या चाहते हैं ना, डिबेट डिस्कशन सारे अखबारों में जा रहे हैं भाई, चर्चाएं हो रही हैं, लोगों की विल को फॉलो किया जा रहा है, पेशेंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ मासेस दे आर बीइंग फॉलोड। तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को कहते हैं। देखो ये हमारा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की चीज़ों में भी आप ऐड कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हिस्टोरिकल फोर्सेस आया हुआ है ना, कि हिस्टोरिकल फोर्सेस दैट शेप अप द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वही है। तो इसको मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ से भी आप देखेंगे। एक सेकंड भाई, कितने सारे पेज हैं, छोटा हो जाए भाई। दिस इज डन। हाँ, तो ये देखो हिस्टोरिकल फोर्सेस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किसके एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है, उन लोगों के जिन्होंने इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया। हमारी डिमांड डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये आइडियल्स थे उन लोगों के जिन्होंने स्ट्रगल में पार्ट लिया, ठीक है। अब देखो पुराने टाइम पे चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया, ये भी विडोज़ की रीमैरिज इसको सपोर्ट किया गया, सोशल जस्टिस, ठीक है ना, सोशल जस्टिस की बात की गई, ठीक है, किसी के साथ भी समाज में जाति धर्म कास्ट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको लेके बात की गई। स्वामी विवेकानंदा कैंपेन फॉर रिफॉर्म इन हिंदुज़म, ये सारे देखो पास्ट के एग्जांपल्स आप पॉइंट की फॉर्म में बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा ने रिफॉर्म किया हिंदुज़म में। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के,
इन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए वर्क किया, दलित्स के लिए वर्क किया, स्कूल वगैरह भी ओपन कराए। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, इन्होंने वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की बात की, वही इकोनॉमिक, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सोशल जस्टिस, समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनके साथ। अब देखो इसी बीच अगर हम देखें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, जैसे पिछले आपको क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि 1909, 1919, 1935 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। एक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इंडियंस को ज़्यादा कंसेशंस दिए जा रहे थे, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट के बाद आया था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आया, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद आया, इसके बाद इलेक्शन हुए थे 1935 के बाद, ठीक है। तो इंडियन का पार्टिसिपेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बढ़ता जा रहा था। एग्जीक्यूटिव पहले पार्टली रेस्पॉन्सिबल था। देखो एग्जीक्यूटिव पार्टली रेस्पॉन्सिबल क्या है हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव क्या है, कौन है, अगर सेंट्रल लेवल पे देखें प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स, ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में जो बैठ रहे हैं वो लेजिस्लेचर है, तो ये एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब जो लोकसभा रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, जो यहाँ से बिल पास होंगे वो ये लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर और इनको हटा भी सकती है। तो जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो कानूनों को एग्जीक्यूट करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, कानून बनाने वालों के अकॉर्डिंग, मतलब लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। पहले तो ये पार्टली रिस्पॉन्सिबल था, कब, जब 1919 ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो लेजिस्लेचर कानून बना रहा है ना, तो पार्टली रिस्पॉन्सिबल मतलब अपनी भी चल रही है इनकी, ठीक है ना, और जो कानून बन रहा है उसको भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट इट वॉज इन 1935 इट वॉज मेड एंटायरली रिस्पॉन्सिबल। तो क्वेश्चन आता है भाई एमसीक्यू में कि एंटायरली रिस्पॉन्सिबल कब बन गया था, 1935 के एक्ट में। पार्टली रिस्पॉन्सिबल कब बना था, 1919 के एक्ट में। इसको दोबारा से देखना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, क्योंकि एक बारी में नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ही कमज़ोर होगा, मुझे पता है, ठीक है। वैन इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, ये हमें पता है, 35 के एक्ट के बाद कांग्रेस को 8 में से 11 सीट मिल गई थी, ठीक है ना, 8 में से 11 प्रोविंसेस जीत गई थी, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है महात्मा गांधी वाले चैप्टर में। अब देखो ये जितने भी एक्ट थे 1909, 1935, ये डायरेक्टली डिबेट नहीं किए गए इंडियंस के द्वारा, जिसमें इलेक्टोरेट थे ना, ठीक है, वो 10 से 15% लोगों के द्वारा ही चुने गए। देखो जैसे चाहे 1946 के भी इलेक्शन थे, उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज था, तो कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी थी यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में बात आती है कि भाई विजन दैट नेहरू वाज ट्राइंग टू आउटलाइन। अब बट नेहरू जी क्या चाह रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बता दिया, वो पीछे से पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कौन कौन सी हिस्टोरिकल फोर्सेस थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ये चाहते थे, ठीक है। इसमें इनमें एक्ट में नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, विजन इंडिया का, क्योंकि ये तो ब्रिटिश के अंडर में बने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में ही हमें इंडिया का विजन मिल रहा है। अब डिफाइनिंग राइट्स, किसके पास क्या राइट होंगे भाई, राइट इंडिविजुअल के, सिटीजन्स के पास जो होंगे उनको कौन डिफाइन करेगा, क्या राइट्स होंगे। ऑप्रेस ग्रुप के पास कितने राइट्स होंगे, क्या उनके पास स्पेशल राइट्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स, माइनॉरिटीज़ को क्या राइट्स मिलेंगे, ठीक है ना। माइनॉरिटी कौन होंगे, ये क्या कैसे डिफाइन होगा, माइनॉरिटी कौन होंगे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, अब इनके आंसर हम नीचे देखेंगे। विल ऑफ द पीपल, नेहरू ने कहा कुछ भी हो भाई, नेहरू हैड इन्वोक्ड इट, विल ऑफ द पीपल शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें फुलफिल करना है पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। ये आपके आंसर में दिखने चाहिए ना भाई ऐसे लाइंस, तभी तो हाईलाइट की हुई है। विल ऑफ द पीपल, पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ मासेस, दीज आर थिंग्स दैट वर बीइंग इंश्योर्ड व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको डिबेट किया जा रहा था, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे, उनको रिकनसाइल किया जा रहा था, ठीक है। रिकनसाइल मतलब बातचीत हो रही थी, मशवरा हो रहा था उन पे, और फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे जिन पे सहमति नहीं बैठती थी, सब आपस में मिलकर कंसेंसस अचीव करते थे, आपसी सहमति बनाते थे उन चीज़ों को लेके। प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके क्या प्रॉब्लम थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम लीडर है तो इसे मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदू नहीं वोट कर सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेगा तो दलित हैं तो दलित लीडर को दलित वोटर्स ही चूज करेंगे, बाकी सब अपना अपना देखते रहो, ठीक है ना। इसमें किसी और धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही वोटर्स होंगे, वो मुस्लिम लीडर को चूज करेंगे, तो दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
तो व्हाट आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो इसकी एक आप डेफिनेशन तैयार करना, व्हाट आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ सकता है, ठीक है। अब कौन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में थे, कौन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में नहीं थे, कोई भी अगर बड़े क्वेश्चन आता है ना, अगर 3 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिखो, डायरेक्ट डिमांड फुलफिल करो, छोटी सी अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी पोकर बहादुर, ठीक है, ये थे मद्रास से, ऐसे भी याद रखेंगे भाई, एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, बी पोकर बहादुर मद्रास, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी मद्रास से थे, के एम मुंशी ये गुजरात से थे, 4 नाम इधर दे दिए, 4 जगह दे दी, मैच करो। तो भाई कुछ नहीं पता, तो इसलिए जब अगर एनसीईआरटी में है तो आ सकता, ठीक है। बी पोकर बहादुर ये कहते हैं, ठीक हाँ जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, अदरवाइज ये कहते हैं कि इरेज आउट हो जाएंगे वो एग्जिस्टेंस से माइनॉरिटीज़, हारमोनी बनी रहेगी भाई, झगड़े ही नहीं होंगे ना, खुद अपने लीडर को चूज कर रहे हैं, डिफरेंसेस नहीं होंगे एक दूसरे के बीच में, डिफरेंसेस वुड बी मिनिमाइज्ड, पॉसिबल ओनली इफ माइनॉरिटीज़ वर वेल रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। डिफरेंसेस कब नहीं होंगे, जब माइनॉरिटीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो भाई बी पोकर बहादुर, तो देखो सीधी बात ये है, ऐसे कह सकते हैं बी पोकर बहादुर है, बहादुर इंसान है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके फेवर में बात कर रहा है, ठीक है ना, कुछ भी बना लो भाई ट्रिक, बी पोकर बहादुर, ठीक। नेक्स्ट इज, ये कहते हैं कि देखो माइनॉरिटीज़ की बात चल रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं बी पोकर बहादुर देने चाहिए, मुस्लिम्स तभी उनकी मीनिंगफुल वॉइस होगी जब उनको एक मुस्लिम रूल करेगा, मुस्लिम की नीड्स मुस्लिम ही समझ सकता है, और नॉन मुस्लिम की नीड जो वही रिलीजन का बंदा होगा वो समझ सकता है, वही उनका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, ये पॉइंट देते हैं बी पोकर बहादुर। तो भाई जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आएगी तो फेवर में ये बात कहते हैं, ठीक है। बट बहुत से नेशनलिस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे, वो कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स से ब्रिटिश ने हम लोगों को डिवाइड करने के लिए ये एक टूल था उनके हाथ में, ठीक है। तो अब कहते हैं कि आर.वी. धुलेकर कहते हैं भाई ये तो तुमको ना एल्योर करना, ठीक है, इट वॉज टू एल्योर यू, तुम्हें लुभाने के लिए, तुम्हें अपनी साइड करने के लिए ये, ठीक है ना, कुछ कंसेशंस देने के लिए लाए थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था सीधा, तो ब्रिटिश का मकसद यही था। अब कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें मिसगाइड कर सके, तो आर.वी. धुलेकर वाज नॉट इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तीसरा नाम आता है हमारे पास, पार्टीशन जब हो रहा था ना, देखो पार्टीशन किसकी वजह से हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले 1909 में आ गया था हिंदू मुस्लिम के लिए, सॉरी हिंदू मुस्लिम को अलग हुए थे, ठीक है ना, कहीं इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था, तो उसी की वजह से एक कहीं ना कहीं कहेंगे ना सीट्स जो बीच थे सेपरेशन के, तो वहीं से आ गए थे। अब देखो आज़ादी के टाइम पार्टीशन हुआ, सिविल राइट्स, ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की देन है। जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ बोलना हो तो सिविल राइट्स, सिविल वार, राइट्स और वायलेंस, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, CVR, सिविल वार, वायलेंस, राइट्स, ये किसकी वजह से, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये पॉइंट लिखना अगेंस्ट में, पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री, ये सरदार पटेल ने कहा था। तो तीसरे सरदार पटेल मना करते हैं, धुलेकर भी मना करते हैं इसको लेके, ठीक है ना। अब कहते हैं कि पीस चाहिए नहीं कंट्री में, या सिविल वॉर, राइट्स या वायलेंस चाहिए, अगर पीस चाहिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया को भूल जाओ, ये भी सरदार पटेल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने देखे, एक ऐसे करके याद कर लेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स सबसे पहले बी पोकर बहादुर, ठीक है, फिर बहादुर के बाद धुलेकर, ठीक है, तीसरे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आ जाती है सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो अभी बहादुर, ठीक है, धुलेकर और पटेल, BDP, ऐसे अभी हमने देखो कुछ भी निमोनिक बना लेंगे ताकि आपको याद रहे कि भाई इन 4 बंदों के व्यू पॉइंट मुझे देने हैं। इन्होंने पॉइजन की बात की थी, ये अलियोर करने वाली बात की थी, नो वन टू मिसगाइड यू, बहादुर फेवर कर रहे थे, बहादुर के पॉइंट बता देंगे। तो अब देखो आंसर कितना अच्छा बनेगा। अब ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन, हालांकि ब्रिटिश चले गए, वो मिसचीफ छोड़ गए, मिसचीफ यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वल्लभ भाई पटेल की सोर्स से पढ़ लेते हैं, देखो एग्जाम में आ सकती है। अब नो यूज़, ठीक है, नो यूज़ इन सेइंग क्या कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स गुड होंगे हमारे लिए, ठीक है ना। पहले हमने बहुत सुना था इसको, बहुत सालों के लिए हमने सुना, बट इसने क्या दिया हमें, सेपरेट नेशन, ठीक है। अगर हमें वन फ्री कंट्री चाहिए ना, ऐसे हो सॉरी एक ऐसी फ्री कंट्री बता दो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, अगर ऐसी कोई भी कंट्री मिली ना तो मैं अपनी कंट्री में खुद एक्सेप्ट करूँगा भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, ठीक है। बट अगर ये चीज़ परसिस्ट हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर हुआ, ठीक है, तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, क्या कि नॉट वर्थ लिविंग, तो हमारे देश में रहना ही सही नहीं है फिर, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुआ फ़ायदा ही नहीं है।
तो इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का भी फ़ायदा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो। हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, एक साथ यूनाइट होने चाहिए हम लोग, ठीक है। हम उस मिसचीफ को परपिचुएट नहीं होने देंगे जिसने हमें डिवाइड किया, ठीक। अब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इस एलिमेंट को, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। उन्होंने तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए हिंदू मुस्लिम को अलग किया है, ठीक है ना। ये जो लीगेसी उन्होंने छोड़ी है ना, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, और नॉट, ये हमारे ऊपर है, छोड़ दिया। ये सरदार पटेल की बात है। अब तीसरे आ जाते हैं, गोविंद बल्लभ पंत। तो BDPG 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक चीज़ जो डिस्कस हो रही है ना इसमें, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। व्हाट वर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दैट वर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो जीबी पंत देखेंगे, जीबी पंत ने भी मना किया, तो 3 बंदे तो मना ही कर रहे हैं कि हार्मफुल है हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशन के लिए नहीं बट माइनॉरिटीज़ के लिए भी। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि सुसाइडल डिमांड है ये, एक परमानेंटली उन्हें आइसोलेट कर देगा भाई, हमेशा के लिए मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, फिर कौन सुन रहा है इनकी, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक तो माइनॉरिटी में कम नंबर में हो जाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएगा, कौन सुनेगा इनकी, ये वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले ये इफेक्टेड होंगे, कोई इनकी सही नहीं रहेगी भाई गवर्नमेंट में। तो देखो अगर ऐसे भी आ जाए ना कि व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ जीबी पंत रिगार्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो जीबी पंत ने सुसाइडल डिमांड, तो 1 पॉइंट, परमानेंटली आइसोलेट कर देगा 2 पॉइंट, इट वुड मेक देम वल्नरेबल 3 पॉइंट, डिप्राइव देम फ्रॉम इफेक्टिव से 4 पॉइंट, ठीक है। नीचे इन्हीं का एक सोर्स है, फिर सुसाइडल डिमांड होगी माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। इट वुड आइसोलेट देम फॉर एवर, ये भी पॉइंट आ जाएगा। क्रिएट फॉर फ्रस्ट्रेशंस, ठीक। क्या माइनॉरिटीज़ हमेशा के लिए माइनॉरिटीज़ बनना चाहते हैं या फिर इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं इस नेशन को, मिक्स भी होना चाहते हैं नई नेशन के साथ, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना है या नहीं करना, कुछ जो एस्पिरेशंस हैं उनकी कि हमें आगे बढ़ना है, ये फुलफ़िल करनी है नहीं करनी। अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स अपना लिए तो हमेशा के लिए सेग्रीगेट हो जाओगे कंट्री से। तो आपको ये सोर्सेज के क्वेश्चन आंसर भी प्लीज़ साथ साथ कर लेना, साइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं कौन कौन सी क्लास में। तो उनके पास नेवर हैव इफेक्टिव से, ये ऊपर ही पॉइंट डिस्कस हो गया है, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिटी, अब क्या है, इन सब आर्ग्यूमेंट्स के पीछे एक चीज़ देखें, जो हमारा मेन मकसद क्या था, वो पॉलिटिकल यूनिटी हो। हर एक इंडिविजुअल जो हो, इंडिविजुअल को सिटीज़न बनाना है स्टेट का, तो इंडिविजुअल से सिटीज़न कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, उनको एसिमुलेट होना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा नेशन के साथ। अपनी लॉयल्टी स्टेट के लिए रखनी है, ना कि केवल अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने धर्म के लिए, ठीक है ना, अपने लिए नहीं, हमें एक लार्जर कॉज के लिए सोचना है, वो है हमारी स्टेट, हमारी कंट्री। अब ये बात हो रही थी, ठीक है ना। अब कम्युनिटीज़ कुड बी रिकॉग्नाइज एज कल्चरल एंटिटीज़ एंड एश्योर्ड कल्चरल राइट्स, उनको हम रिकॉग्नाइज तो करेंगे, उनको एश्योर करेंगे कि आपके राइट्स हैं, ठीक है, बट डिवाइडेड लॉयल्टीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के लिए सोचूंगा, हिंदू हूँ तो हिंदू के लिए सोचूंगा, ये नहीं, लार्जर कोस देश के लिए सोचना है, ठीक है। तभी हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग स्टेट बना सकते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे कितने बढ़िया पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है, लार्जर गुड, यहाँ पे होगा देखो लार्जर गुड, हाँ, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ऐसे करके ये चीज़ें हैं आपके आंसर में आनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी डिवाइडेड लॉयल्टीज़, ये सोर्स है, PYQ में भी आई हुई है। PYQ देखो लिख के चल रहा हूँ मैं, पीछे भी सोर्सेज के साथ PYQ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ अ लॉयल सिटीज़न, ठीक है। लॉयल सिटीज़न जो होगा, जिसकी कमिटमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन होगा उसके पास, अपने बारे में कम सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा, लॉयल्टी स्टेट के लिए होगी, ठीक है ना, तो ये लॉयल सिटीज़न हो जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड लॉयल्टीज़ होंगी तो क्या होगा, डिवाइडेड लॉयल्टीज़ होगी तो हम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हमारा स्टेट नहीं होगा, CVR हो जाएगा, सिविल राइट्स, सिविल वार, वायलेंस और राइट्स। पीछे से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है, सिंपल सा पॉइंट है, डिवाइडेड लॉयल्टीज़ नहीं होंगी। तो ये आपके PYQ में आए हुए थे कुछ क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिया है। स्टॉप फोकसिंग अपनी कम्युनिटी और अपने लिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में सोचना है, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ऑल लॉयल्टीज़ जो हैं स्टेट के लिए होनी चाहिए। अगर राइवल लॉयल्टीज़ होंगी ना, ठीक है, अपने बारे में एक्स्ट्रावेगेंस हो जाएंगे, अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचेंगे, तो डेमोक्रेसी विल डूम, ठीक है, देश को ही नुकसान होगा इससे।
अब यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम्स जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड नहीं कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो हमने अभी पीछे कितने पढ़ लिए, बी डी पी जी, चार लोग आ गए, ये तीन के तीन नॉट फेवरिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब यहाँ पे इवन मुस्लिम्स वर नॉट फेवरिंग, कौन थी वो, बेगम एजाज रसूल। वो क्या कह रही थी कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, हमें हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाएंगे, इंस्टेड हमें क्या होना चाहिए, मुस्लिम्स को एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो ये बी डी पी जी और बेगम एजाज रसूल, इसमें क्या लें हम, बी डी पी जी, फिर से भी ले लेंगे ना, बेगम एजाज रसूल, पी जी आर, बी डी पी जी आर नहीं, बी डी पी जी, बी डी पी जी, देखो ऐसे याद कर लो, डी पी जी, बी से स्टार्ट बी से एंड, डी पी जी, और ये बेगम एजाज रसूल, बी पोकर बहादुर, दुलेकर पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। आ जाओ सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे क्वेश्चन, मेरा आंसर ये 5 वर्ड से तैयार है, कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, और जो मैं आंसर बनाऊंगा इतना ज़बरदस्त बनेगा ना, और ये जितनी भी हाईलाइट किए हैं वो यूज़ कर लेंगे। MCQ, देखो ये MCQ हमारा 30 आ गया, और हमने MCQs पे ध्यान नहीं दिया, ये घर से आप है ना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि बेगम एजाज रसूल ने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। MCQ भी मैं बताना भूल गया, देखो ये भी MCQ बनता है। अब यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिए थे ना कि भाई इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम होगा, इंडिपेंडेंस ओवन सोशलिस्ट। अब NG रंगा कहते हैं क्या, ये सोशलिस्ट थे, लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था इन्होंने। ये कहते हैं माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए, PYQ आया हुआ है, क्यों, NG रंगा ने क्यों कहा कि इकोनॉमिक टर्म्स में माइनॉरिटीज़ को इंटरप्रेट करो, कि माइनॉरिटी वो है जो गरीब है, ठीक है, माइनॉरिटी वो नहीं जो कम रिलीजन है जिसका, ठीक है, कि भाई हिंदूज के अलावा जो कम नंबर में है, ठीक है, ये हमें इकोनॉमिक टर्म्स में देखना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि रंगा ने क्या बोला, रियल माइनॉरिटीज़ पुअर लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मीनिंगलेस हो जाएगा एक ऐसे गरीब इंसान के लिए कि आप कहो कि यू आर हैविंग राइट टू लिव, आपको जीने का अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट की फुल अपॉर्चुनिटी दी है, भाई वो गरीब इंसान है, उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे के, जब उसके पास एक तो रोटी का इंतजाम तो हो नहीं रहा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से ढूंढेगा वो, ठीक है, एजुकेशन कहाँ से देखेगा, क्या आप मीटिंग करने के लिए फ्री हो, कितनी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हो, आपके पास सिविल लिबर्टी है, कहेगा भाई मैं सिविल लिबर्टी का क्या करूँगा, मेरे पास तो खाने के लिए पहले पैसा ही नहीं है। तो ये बात कहते हैं NG रंगा, और ये 2-3 पॉइंट आपको 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करना है, कैसे, राइट्स कुड बी अफेक्टिवली इंजॉयड, ये जो राइट्स की बात की है ना, इन्हें इंजॉय करने के लिए कुछ उन्हें लेटर देना पड़ेगा, उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा, उन्हें केवल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लेटर, दे नीड सपोर्ट, ये NG रंगा बात करते हैं। नेक्स्ट, ये भी PYQ में सोर्स आई हुई है, रियल माइनॉरिटीज़ कौन है, NG रंगा वाले ही वो, ठीक है ना, पीछे जो हमने डिस्कस किया, पुअर और अंडर प्रिविलेज आर रियल माइनॉरिटीज़। NG रंगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को वेलकम करते हुए क्या टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि रियल माइनॉरिटीज़ कौन है, हिंदूज़ नहीं है, कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज़ या सिख्स नहीं, मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे हैं वो रियल माइनॉरिटीज़ नहीं है, रियल माइनॉरिटीज़ आर डिप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड पीपल, जिनके पास ऑर्डिनरी सिविल राइट्स का एडवांटेज लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर आप ट्राइबल एरिया में चले जाओ, आप कह रहे हो कि हाँ आपके पास ट्रेडिशनल लॉ जो है उसको आप फॉलो करो, कोई भी आपके लॉ को, आपके लॉ जो हैं ट्रेडिशनल उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, आपकी लैंड छीनी नहीं जा सकती है, बट ग्राउंड रियलिटी पे देखो, मर्चेंट वहाँ पे जाते हैं, उनकी लैंड छीन लेते हैं, हालांकि लॉज बने हुए हैं उनके अगेंस्ट, बट उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, स्टिल मर्चेंट्स आर एबल टू स्नैच देयर लैंड, ठीक है ना। दूसरा वो कहते हैं अब ऑर्डिनरी, ठीक है, उनको बॉन्ड और बॉन्ड स्लेव्स बन जाते हैं ट्राइबल्स उन मर्चेंट्स के, कहते हैं चलो अब दूसरी तरफ आ जाओ, ऑर्डिनरी विलेजेस की बात कर लो, मनी लेंडर होते हैं, ठीक है ना, विद हिज मनी लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ, ज़मींदार और ये मालगुजार, ये रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, ठीक, उधार देते हैं और इन लोगों को फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पास एजुकेशन तक नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं हम सब में देखते आए हैं कैसे इनको उधार दिया जाता है, फिर ये डेट में आ जाते हैं और इनकी ज़मीन वगैरह छीन ली जाती है। तो हमें नेसेसरी प्रोटेक्शन देना है इन्हें, मोर देन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो NG रंगा की ये सोर्स है, ये पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। होम आर वी सपोज टू रिप्रेजेंट, अच्छा हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, NG रंगा कह रहे हैं हम ऑर्डिनरी मासेस जो है हमारी कंट्री की, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे भाई, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखो ना कि राइट्स के साथ साथ उन्हें वो कंडीशंस भी बनाने चाहिए जिससे वो राइट्स एंजॉय कर सकें। वी आर द ट्रस्टीज़, वी आर देयर ट्रस्टीज़, देयर चैम्पियंस, वी आर हेयर टू स्पीक फॉर देम।
दीज आर द पॉइंट्स। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है भाई एन जी रंगा के। इनसे अगर मैं एक बात ले जाऊँ ना कि राइट्स जो मिले हुए हैं ना उनको इन्जॉय करने की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, कंडीशंस, ठीक है, वी आर हैविंग राइट्स बट वी आर नॉट हैविंग द कंडीशंस टू एंजॉय दोज राइट्स। दिस इज द लाइन दैट आई विल टेक फ्रॉम एन जी रंगा। बहुत ज़बरदस्त लाइन है भाई, ठीक है। एन जी रंगा ऐसे याद कर सकते हैं, एन जी रंगा नाजी, ठीक है, नाजी राइट्स हैं हमारे पास बट हम उन्हें इन्जॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्या आप राइट को इन्जॉय कर पा रहे हो? नाजी हम नहीं कर पा रहे, देखो सॉरी बट थोड़ा सा ट्रिक के लिए बच्चों आपको बताना पड़ रहा है ताकि आपको ईजी हो जाए लर्न करना। नेक्स्ट आती है अब ट्राइबल्स की बात। देखो हमने कितना पढ़ते आ रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात पढ़ ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्रेस माइनॉरिटीज़ की बात हो गई क्लियर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक तो मुस्लिम के लिए पूरा चला था, फिर रियल माइनॉरिटीज़ कौन है, एन जी रंगा वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब ट्राइबल्स की बात आती है, ट्राइबल्स के लिए बोलते हैं जयपाल सिंह, याद रखेंगे। फॉर ट्राइबल्स जयपाल सिंह वॉज देयर टू स्पीक इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कहते हैं कि हमें शेबली ट्रीट किया गया कई सालों से, ठीक है ना, हमें नेग्लेक्ट किया गया 6000 साल से, कंटिन्यूस हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया गया, ठीक है। हमारी लैंड से हमें डिस्पोजेस कर दिया गया, हमारी ज़मीन छीन ली गई, ठीक है। बट हम सब कुछ भूलने के लिए, हम सब कुछ भूल कर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशंस इंश्योर करो, ठीक है, कि हम अपने आप को राइज अप कर सकें जनरल पॉपुलेशन के जितना, ठीक है। बट दे नीड प्रोटेक्शन, ठीक। हम न्यूमेरिकली वी आर नॉट इन माइनॉरिटी। अब कहेंगे ट्राइबल्स पूरी कंट्री में कितने हैं, करोड़ों की संख्या है, तो न्यूमेरिकली हम माइनॉरिटी नहीं है बट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा सिंपल सा पॉइंट है कि हम आपके साथ मिक्स होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ मिक्स होना चाहते हैं हम भी रेडी हैं। हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाह रहे भाई दूसरों की तरह, बट हम एक काम करो, हमें रिजर्वेशन दे दो, ठीक है, ताकि रिजर्वेशन एक तरीका बन जाए हमारी आवाज़ को सुनने का। ये जयपाल सिंह का ट्राइबल्स को लेके क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में व्यू पॉइंट रेस किए गए, 3 नंबर में तैयार कर लेना, सीधा सीधा हाईलाइट से पॉइंट्स बन जाएंगे। वी आर सप्रेस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब किसकी बात आती है, अम्बेडकर बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, बट इसको कौन अपोज करता है, महात्मा गांधी। पीछे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट पढ़ के आ गए, महात्मा गांधी वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी क्यों अपोज करते हैं, कहते हैं परमानेंटली सेग्रीगेट कर देगा, हमेशा के लिए आपको हमसे अलग कर देगा मेन स्ट्रीम हिंदू से, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, वर्ड डिप्रेस कास्ट को कैसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब कहते हैं कि प्रोटेक्शन केवल सेफ गार्ड नहीं है, ठीक है, जो सोसाइटी के तौर तरीके हैं, मॉरल वैल्यूज़, जो कास्ट सिस्टम है सोसाइटी में, उसको चेंज होना चाहिए। सोसाइटी ने हमारी सर्विसेज को यूज़ किया, हमारे लेबर को यूज़ किया, ठीक है ना, बट फिर हमसे सोशल डिस्टेंस किया, हमारे साथ मिक्स होने के लिए मना कर दिया, हमारे साथ डाइनिंग करने के लिए मना कर दिया, इवन हमें टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं मिली, ठीक है ना। हमारे साथ हम स्टार्टिंग से ही सफ़र करते आ रहे हैं, जे नागप्पा मद्रास से। देखो अब ये पॉइंट बनेंगे, बी आर अम्बेडकर, जे नागप्पा, ये भी बोलते हैं क्या कि न्यूमेरिकली नॉट इन माइनॉरिटी, सेम जैसे ट्राइबल्स जयपाल सिंह ने कहा था, न्यूमेरिकली हम माइनॉरिटी में नहीं है, 20-25% है पॉपुलेशन के, बट हमें सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज किया गया है, ठीक है ना। ना तो हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी सेइंग है, ठीक है। फिर बी आर अम्बेडकर, जे नागप्पा, फिर जे के बाद जे के आता है ना, जे के, फिर के जे आ गए, के जे खंडेरकर। क्या बात बोलते हैं, के जे खंडेरकर बोलते हैं कि सेंट्रल प्रोविंसेस के हैं ये, कहते कि हमें इतना सप्रेस कर दिया गया है, अब हमारे माइंड बॉडी हमारा हार्ट सब ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये वाली बात के जे खंडेरकर। 3 पॉइंट हो गए भाई, याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर एक व्यू पॉइंट, दूसरा हमारा हो जाएगा किसका, जे नागप्पा, फिर के जे खंडेरकर। 4-5 पॉइंट इन्हीं से बना लेंगे, ठीक है ना। देखो पहले इनिशियली बी आर अम्बेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पार्टीशन हुआ, वायलेंस देखा, वही CVR, सिविल वार वायलेंस और रायट्स, उसको लेके अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, ठीक है। बट अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करो, टेम्पल में एंट्री दो, सीट दो, हमें रिजर्वेशन दो लेजिस्लेचर में, जॉब्स होनी चाहिए रिजर्व दलित्स के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म होगा, ये सब चीज़ तो दे दी, बट व्हाट अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज जो हमारे साथ करता है, ठीक है, हर जगह तो नहीं ये जाके इम्प्लीमेंट की जा सकती चीज़, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का क्या, देयर नीड टू बी चेंज इन द एटीट्यूड। और इसी के लिए मैंने एक कंक्लूजन बनाया है, जब इसको लेके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ये कंक्लूजन देंगे, द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी नीड टू बी चेंज, ठीक है, नीड टू बी अल्टर्ड, अल्टर्ड हो जाएगा, एंड अ विंड ऑफ चेंज मस्ट
काम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विद इन, अंदर से चेंज आनी चाहिए। जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे ना, तब तक कितने भी राइट प्रोटेक्शन दे देंगे, वो ग्राउंड लेवल पे चेंज नहीं आता दिखेगा हमें। वी वॉन्ट रिमूवल ऑफ अवर सोशल डिसेबिलिटीज़। चौथा पॉइंट देखो ये आ गया, दक्ष यानी वेलायुधन, ये कहाँ की हैं, मद्रास के, ठीक है ना। ये सीधा सीधा पॉइंट रखते हैं कि रिमूवल हो जाए किसके, जो सोशल डिसेबिलिटीज़ दलित के लिए है वो इसको ख़त्म करें। रिसोर्स में ये दिया है, वी हैव नेवर आस्क फॉर प्रिविलेजेस। हंसा मेहता बॉम्बे की, ये वुमेन के जस्टिस की बात करती हैं कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस वुमेन को भी मिलना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैन एंड वुमेन दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट मिले, ये सब चीज़, ठीक है। रियल कॉपरेशन, मैन एंड वुमेन की ये बात करते हैं, याद रखना। वुमेन को लेके एक ही पॉइंट आया हंसा मेहता का, बॉम्बे से। अब सेंटर के पास कितनी पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ये किसने व्यू पॉइंट रखे, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट के पास, एक तो देखो स्टेट हो गया और दूसरा हो गया सेंटर। यहाँ पे बात है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर की कौन करता है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट, ठीक है। तो प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ये कौन व्यू पॉइंट रखता है, ठीक। तो दोनों में जितने भी लोगों ने बातें की हुई हैं ये सब हमें पता होना चाहिए, देन विल बी हैविंग अ गुड आंसर। अब देखो, जब देश आज़ाद होता है ना, उस टाइम पे सेंटर स्ट्रांग होने की बात होती है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। डिबेट जो हो रहा होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कितने होंगे। स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्यों स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए कहते हैं, ये याद रखेंगे आप, किसके लिए, पीसी। तो पीस अगर इस्टेब्लिश करना है, कोऑर्डिनेशन अगर हमें लेके आना है डिफरेंट स्टेट्स के बीच, पीस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वाइटल मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न, और अगर इंटरनेशनल स्पेयर के लिए पीसीआई, पीस कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल स्पेयर में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। मैं इंटरनेशनल स्पेयर में तभी तो आप कुछ बोल पाओगे जब स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ना, सारी स्टेट के बिहाफ पे मैं खड़ा हूँ भाई, जो मैंने कह दिया वो मेरी स्टेट मानेगी। आप कह दो इंटरनेशनल स्पेयर में कि भाई मैं अपनी स्टेट के लिए, अपनी स्टेट के बिहाफ पे हूँ, पता चला 3 स्टेट ने मना कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर इंटरनेशनल स्पेयर में बोलने के लिए होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे देखो डिवाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, पाकिस्तान अलग हो गया था। हम सेंटर को इसलिए स्ट्रॉन्ग किया ताकि अगर स्टेट को और ज़्यादा पावर मिली तो हो ये ना हो कि दूसरी स्टेट भी सेपरेट होने की डिमांड रखे। तो एक तो पीसीआई जवाहरलाल नेहरू के पॉइंट हो गए। तो हमने पावर्स को कैसे डिवाइड किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। अब जो तीसरी लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है हमने, अगर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए कॉन्करेंट लिस्ट में, किसकी चलती है, सेंटर की चलती है। अब बात आती है मिनरल्स वगैरह की, यूनियन कंट्रोल करेगा मिनरल्स को और की इंडस्ट्रीज जो भी है, ठीक है ना। तो की इंडस्ट्रीज को और मिनरल्स को कौन कंट्रोल करेगा, यूनियन। जैसे फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये हमारी की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, रिफाइनरीज हो गई, ये सेंटर कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 356 ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये ऐड किया कि अगर स्टेट जो है हमारी, सेंटर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है, स्टेट नहीं गवर्न कर पा रही सही से, तो 356 के तहत सेंटर जो है उसकी पावर को ले सकता है स्टेट की। रिकमेंड कौन करता है, गवर्नर, याद रखेंगे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट दे सकता है यहाँ पे, नो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर स्टेट की पावर को लिया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। बस इतना इतना सा खेलते हैं, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर दिया, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर दिया, ऐसे घुमाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल में आ जाएगा किसके पास कितनी पावर होगी, ओ सॉरी, किसके पास कितनी पावर होगी टैक्सेशन की, ठीक है ना। अब आती है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में आ जाएगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे टैक्स सेंटर लगाएगा, स्टेट, सिंपल बात है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर इंटरनेशनल हो रहा है तो सेंटर लगाएगा। कंपनीज है बड़ी बड़ी, उस पर टैक्स कौन लगाएगा, ये सेंटर रिटेन करता था टैक्स। फिर दूसरे टैक्स आ जाते हैं इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स। इनकम टैक्स लोगों की इनकम पे लगता है, एक्साइज टैक्स जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो भी कंपनीज वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं उस पर एक्साइज टैक्स लगता है। ये दोनों टैक्स हैं जो शेयर होते हैं, सेंटर इसमें से कुछ पैसा शेयर को, स्टेट को शेयर करता है। अब ये जो है इनकम टैक्स तो है अभी भी, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया ना, अब ये जीएसटी में आ गया, अब तो नया जीएसटी आ गया ना हमारे पास। फिर दूसरी जगह आती है हमारे पास कुछ ऐसे ड्यूटीज जैसे स्टेट ड्यूटीज़। स्टेट ड्यूटीज़ में क्या आता है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, किसी की अगर फादर की डेथ हो जाए, उसके बाद जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है ना सन के नाम पे, तो कुछ टैक्स के पे करना पड़ता है स्टेट को, उसे स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट ड्यूटी जो स्टेट रखेगी ये स्टेट के पास रहेगी होल्ली, ठीक है।
तो स्टेट मीनवाइल कुड लिवाई एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस, और उनको ऑन भी कर सकती है। कौन कौन से? लैंड पे टैक्स ये स्टेट रखेगी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, शराब पे जो टैक्स लगता है वो भी स्टेट पे। शराब पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी में नहीं आता। हालांकि इकोनॉमिक्स वाला हो गया, इतना ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, अगर आप याद रखें तो उसे बोल सकते हैं सेंट्रल स्टेट में कैसे डिवाइड हुई पावर। तो सर्टेन टैक्सेस वर रिटेन बाय द सेंटर, सर्टेन टैक्सेस वर शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट, सर्टेन टैक्सेस वर ओनली रिटेन बाय द स्टेट। कुछ टैक्स जो केवल स्टेट रखती है, कुछ टैक्स जो केवल सेंटर रखता है, कुछ टैक्स जो दोनों में शेयर होते हैं। शेयर वाले ये आ गए टैक्स। तो यहाँ से पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आते हैं बात लेके स्ट्रॉन्ग सेंटर की। सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। फिर प्रोविंसेस के बारे में, प्रोविंसेस को सपोर्ट करते हुए, मतलब स्टेट को सपोर्ट करते हुए, के संतानम मद्रास के ये डिफेंड करते हैं स्टेट्स को। कहते हैं कि सारी की सारी ज़्यादा पावर अगर सेंटर को दे दोगे तो ओवर बर्डन हो जाएगा भाई, इतने सारे फंक्शन कैसे इफेक्टिवली कर पाएगा, एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। इतनी ज़्यादा पावर आप स्टेट को दे दो, वो सेंटर को दे दोगे, स्टेट तो इम्पावरिश हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोविंसेस विदाउट फाइनेंसिस कैसे डेवलपमेंट करेंगी अपना, ठीक है ना, कैसे अपना डेवलपमेंट करेगी। बात होती है बिना फाइनेंसिस बिना टैक्सेस के कैसे स्टेट अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी, कैसे अपने लोगों को एजुकेट कर पाएंगी स्टेट्स। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा एक डार्क फ्यूचर दिख रहा है स्टेट्स के लिए अगर ज़्यादा पावर सेंटर के पास होंगी, ठीक है। प्रोविंसेस फिर रिवोल्ट कर देंगी सेंटर के खिलाफ। जे संतानम के पॉइंट्स, जब सॉरी किसको पावर देने की बात हो, प्रोविंसेस को, मतलब स्टेट्स को पावर देने की बात हो, ठीक है। तो सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, ये किसने कहा है, ठीक है। सिंस पावर जो है एक्सेसिवली सेंट्रलाइज हो जाएंगी, ओवर बर्डन हो जाएंगे, ये किसने कहा था, हमारा के संतानम मद्रास के। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बंदे थे जिन्होंने मतलब इस चैप्टर में स्टेट को ज़्यादा पावर देने की बात की है। अब यहाँ पे साइड में सोर्स देख लेते हैं, कौन बेटर पेट्रियट है। तो यहाँ पे कहते हैं ए रामस्वामी मुदालियर, ये कहते हैं कि हमें ये एक ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा डिस्कोर्स ना क्रिएट करें कि बेटर पैट्रियट वही है जो सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड कर रहा है, और जो स्टेट की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, स्टेट को पावर की डिमांड कर रहा है, उसका जो है इज़ नॉट हैविंग इनफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। तो ऐसा नहीं हो, जिसकी जो भी पॉइंट है भाई अपना वो सही से रख सकता है, इनकी केवल ये बात थी, ठीक है। ऐसा नहीं जो सेंटर की बात कर रहा है वही अच्छा पैट्रियट है। वट वी वॉन्ट टूडे इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू ने बात कर दी, ठीक है, के संतानम ने इनको अपोज कर दिया। ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को जे के, देखो जे के से हमें दो, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और प्रोविंसेस को के संतानम, सारे व्यू पॉइंट्स याद रखेंगे। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रॉन्ग सेंटर को लेके, तो पहले हम के संतानम का लास्ट में देंगे। देयर वॉज सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु वर अपोज टू गिविंग मोर पावर टू द सेंटर एंड अब फिर बता देंगे के संतानम के बारे में, ठीक है, सच एस के संतानम एंड वो क्या बात करते हैं, ये ओवरबर्डन हो जाएगा और ये सब, ठीक है। व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। द आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रेटर पावर फॉर प्रोविंसेस, उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमें देखने के लिए मिला। अब बात आती है बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर कहते हैं सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बनाओ, मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एमसीक्यू हो जाएगा, किसने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेंटर से भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ, ताकि वही सीवीआर ना हो, राइट्स वायलेंस ना हो, इसको हम स्टॉप कर सकें। फिर आते गोपाल स्वामी अयंगर, वो अय्यर थे, यहाँ पे अयंगर है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना पॉसिबल, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये एक पॉइंट आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ 3 नंबर में, व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ बालकृष्ण शर्मा फॉर गिविंग रिगार्डिंग पावर्स टू द सेंटर एंड स्टेट। तो ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। अब देखो क्यों, स्ट्रॉन्ग सेंटर से कंट्री का वेलबींग होगा, मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छे से मोबिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चौथा पॉइंट डिफेंड द कंट्री, फॉरेन एग्रेशन, कोई वॉर वगैरह कर देता है। तो अब देखो, एक हमने जवाहरलाल नेहरू देखे स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी और फिर जी गोपाल स्वामी अयंगर, फिर बी से बालकृष्ण शर्मा। तो बी आर अम्बेडकर के साथ एक और भी आप लगेंगे, बी आर अम्बेडकर, बालकृष्ण शर्मा, इनके 4 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स में देखो कैसे कैसे, एक तो ये आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल पॉइंट, वेलबींग ऑफ द कंट्री, ठीक है, मोबिलाइज द इकोनॉमिक पॉइंट, पेस्टल लगाओ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये भी फिर हमारा पॉलिटिक में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंड द कंट्री ये पॉलिटिकल में आएगा, किसमें, आईआर वाले पॉइंट में, पॉलिटिकल में ही आईआर आता है। तो 3 तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉइंट हो गए, एक इकोनॉमी से, वेलबींग ऑफ द कंट्री।
इसे सोशल मान लो, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, सोशल, फिर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और 2 पॉलिटिकल आ गए बिफोर पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन से पहले क्या हो रहा था कि हम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भाई हम जहाँ पे मुस्लिम्स हैं वहाँ पे कुछ एरियाज़ को ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी ना, कि उनको पावर देनी चाहिए, सेंटर जहाँ पे इंटरफेयर ना कर सके उन स्टेट्स में। बट आफ्टर पार्टीशन अब तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स थी वो तो ख़त्म ही हो गई ना अब। ठीक है, तो पार्टीशन के बाद नो लॉन्गर देयर, ऐसा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे ऑटोनॉमी हो, ऑलरेडी अ यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे ही मुस्लिम लीग हटे, हम तो पहले से ही देखो ब्रिटिश के अंडर में थे जब हम, तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर तो हम यूनिटरी थे, सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी। ठीक है, वायलेंस क्यों होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम, वायलेंस ख़त्म होगा, सेंट्रलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैओस वगैरह, सीवीआर तो देखो, सीवीआर तो याद कर लो, सीवीआर हटाने के लिए और ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर नेसेसरी है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी अभी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये देखेंगे। लैंग्वेज ऑफ द नेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस वर देयर। ठीक है, कंट्री में इतने सारे लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज। अब चैलेंज था कैसे कनेक्ट करेंगे इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों को। ठीक है, 1930 से कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि हम हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। हिंदुस्तानी क्या था, उसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत सबके वर्ड मिक्स होकर हिंदुस्तानी लैंग्वेज बनती है। तो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है, ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, इट इज़ हिंदुस्तानी। ठीक, अब हमें पता चलता है कि मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, महात्मा गांधी भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, आइडियल लैंग्वेज है। ठीक है, इससे हिंदू और मुस्लिम यूनिफाई होकर रहेंगे। बट जैसे ही 19वीं सेंचुरी ख़त्म होती है, हमें देखने के लिए मिलता है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना ब्रिटिश स्टार्ट कर देते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। ठीक है ना, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हिंदी उर्दू में भी झगड़ा देखने के लिए मिलता है, इन दोनों को अलग करना है। संस्कृताइज करना हिंदी को, मतलब हिंदी से जो भी हमारे पर्शियन और अरेबिक वाले वर्ड है वो हटा दो। उर्दू को पर्शियनाइज करना, मतलब जो संस्कृत वाले वर्ड्स हैं वो हटा दो। तो इनको भी सेपरेट करने की बातें होने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज, रिलीजियस पॉलिटिक्स की वजह से, बट महात्मा गांधी वाज स्टिल सपोर्टिंग हिंदुस्तानी। अब यहाँ पे सोर्स है। ठीक है ना, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक बढ़िया लैंग्वेज की। ठीक, यहाँ पे महात्मा गांधी तो कहते हैं हिंदुस्तानी होनी चाहिए। अब उसमें ये नहीं है कि संस्कृताइज्ड हिंदी हो, पर्शियनाइज्ड उर्दू हो, नहीं, मिक्स होना चाहिए। ठीक है, एडमिट करने चाहिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड और उनको मिक्स कर देना, एसिमुलेट करना चाहिए। चाहे फॉरेन लैंग्वेज का भी वर्ड है उसे भी लो। आज के टाइम में जैसे आई एम स्पीकिंग ना, मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब कुछ मिक्स ही बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज हिंदुस्तानी बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हो गई। ठीक, फॉरेन लैंग्वेजेस मिक्स वेल ईजिली। फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी हम ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे हमारी लैंग्वेज के साथ आसानी से वो वर्ड्स में मिक्स वगैरह हो जाएं। अगर हम अपने आप को हिंदी या उर्दू में ही कन्फाइन कर लेंगे ना बच्चों, तो इट इज़ क्राइम अगेंस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म फुलफिल नहीं होगा, इससे हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब हिंदी को लेके कौन बातें उठाता है, ऐसे ही फिर हम अपना वही निमोनिक बना लेंगे। सबसे पहले आर.वी. धुलेकर। क्या धुलेकर का हमने पहले नाम पढ़ा जी, याद आ रहा है कुछ, हमने धुलेकर का पहले भी नाम पढ़ा है, बट सरदार पटेल से पहले माइनॉरिटीज़ को लेके बात हो रही थी। ठीक है, जल्दी 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 एक बार, हाँ, जी.बी. पंत आ गए। यहाँ पे आते कि ये रे आर.वी. धुलेकर, याद रखना, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके भी नो वन इज़ देयर टू गाइड मिसगाइड अस ये बोला था। अब ये हिंदी को लेके भी बोल रहे हैं, हिंदी का बहुत स्ट्रांगली फेवर करते हैं आर.वी. धुलेकर। इतना कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको भाई हिंदी नहीं आती ना, दे आर नॉट वर्दी टू सिट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जाओ भाई यहाँ से आप। पूरा डिस्टर्बेंस, कॉमोशन डिस्टर्बेंस हो जाता है उनके इस रिमार्क से, सब लोग भड़क जाते हैं। फिर हाउस में पीस क्रिएट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, बहुत मुश्किल से सबको समझाते हैं भाई ऐसे 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 मत बोलो। ठीक है, 3 साल बाद फिर से धुलेकर की स्पीच आती है, एक ह्यूज स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट लैंग्वेज कमेटी जो होती है ना, देखो जैसे अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, जब चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलते हैं, तो लैंग्वेज कमेटी अपनी रिपोर्ट को मतलब वहाँ पे सबमिट करती है। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला होता है, क्या कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट
वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, और ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे हम हिंदी में। फर्स्ट 15, ठीक है ना, ईयर्स इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे भैया, ठीक है। इट हैड डिसाइडेड बट नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर्ड दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी, हिंदी में जो ट्रांजिशन लेंगे धीरे धीरे होगा। देखो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, जितनी सदर्न स्टेट्स है ना, चाहे तमिलनाडु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, ये लैंग्वेजेस वो हैं, ये हिंदी से, हिंदी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में भी नहीं आती है, संस्कृत आएगी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। तो आप एक है ना गूगल सर्च करना कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इसको लेके सदर्न स्टेट्स जो हैं ये भड़क जाते हैं कि एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दिया जाए, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो तो हिंदी को ही प्रेफर करेंगी, ठीक है ना। बट हम देखेंगे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे देश में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो एकमात्र ऐसा ही हमारा देश होगा जिसने सभी धर्मों को भी अलाउ किया हुआ है, ठीक है ना, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं यहाँ पे, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अपने से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, दूसरों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। लैंग्वेज क्या छोटी है बड़ी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 29 है, 30 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं। तो बहुत मतलब मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर हैविंग, ठीक है। इट हैज़ डिसाइडेड नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर्ड, तो अब पहले 15 साल के लिए इंग्लिश यूज़ होगी। हर एक प्रोविंस को अलाउ कर दिया गया कि भाई आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप अपना ऑफिशियल काम करा सकते हैं। हिंदी ऑफिशियल होगी रेदर देन नेशनल लैंग्वेज, जो कि आज तक भी यही सेम स्टेटस है। अब दिस प्लेकेटेड द रफल्ड इमोशंस, प्लेकेट मतलब थोड़ा सा जो लेस एंग्री, मेड देम लेस एंग्री, ठीक है। उन लोगों के इमोशंस जो कि हिंदी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे। दुलेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। दुलेकर की स्पीच देखो, सर नो बडी इज़ मोर हैप्पी देन माई सर, मेरे से ज़्यादा कोई कुछ नहीं होगा, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आपने बना दिया, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कंसेशन दिया है, बट मैं ये कहूँगा ये तो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो मतलब वो कहते तो भाई मेरे से ज़्यादा कोई खुश नहीं है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में, बट टोन से समझ आ रहा था, दुलेकर जी की टोन से ही समझ आ रहा था हमें कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे, वो इस चीज़ को लेके खुश नहीं थे। अब दूसरी जगह एक तरफ तो सपोर्ट में आ गए हिंदी के, दूसरी जगह कौन कौन लोग थे जो हिंदी के अगेंस्ट जा रहे थे। सबसे पहले देखो, इसकी ट्रिक ये है कि जितने भी हमारे गॉड और गॉडेसेस हैं, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, उनके नाम से याद कर लेंगे। दुर्गा भाई, गॉडेस दुर्गा से याद कर लेंगे। दूसरा व्यू पॉइंट रखते हैं, दूसरे आ जाएंगे शंकर भगवान से, शंकर राव देव। तीसरे भगवान राम से रामलिंगम चेट्टियार। तो उसको मैंने ऐसे याद किया था, तीनों गॉड गॉडेस हैं जो केवल मतलब कहते हैं कि हिंदी नहीं, ठीक है ना, दूसरी लैंग्वेज को भी देखना चाहिए। दुलेकर की स्पीच के बाद, ठीक है, श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से वो क्या कहती हैं कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू हो गया है, ठीक है। नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लड़ाई हो रही है, ठीक है, ये फाइट है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पावरफुल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ऑन द कंपोजिट कल्चर, ठीक है। दिस इज़ अ फाइट कि हमारी किसकी लैंग्वेज पावरफुल है, इसको ऐसे लेके फाइट हो रही है, ठीक है ना। अब ये तो मतलब जो हमारी इंडिया का कंपोजिट कल्चर है, ब्लेंड है एक, ठीक है, जैसे हिंदुस्तानी था, हिंदी और दूसरी जो थी हमारी उर्दू, तो वो कंपोजिट कल्चर बन रहा था ना, मिक्स वाला कल्चर है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अब दुर्गाबाई कहती हैं, ठीक है, कि अपोजिशन था बहुत स्ट्रॉन्ग, साउथ से बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था इस चीज़ को लेके जो हिंदी की प्ले की जा रही है। हमने महात्मा गांधी जी को हमेशा ओबे किया है, बट मैं शौक थी ये एजिटेशन कितना खतरनाक, कितना, ठीक है ना, अगेंस्ट द एंथुजियाज्म विद विच हिंदी को ऐसे असर्ट किया जा रहा था। हमने हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, बट ये क्या चीज़ है, उर्दू के वर्ड्स इसमें से हटाए जा रहे थे। तो ये तो इंक्लूसिविटी, सबका साथ जो है ना, एक कंपोजिट कल्चर है, ठीक। अब ये जो मिक्स हो गया हम रह रहे हैं उसके लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, इट क्रिएटेड एनजाइटीज अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दूसरी जगह यही बात कहते हैं शंकर राव देव, क्या कहते हैं, हमने हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट किया बट इट इज़ क्रिएटिंग सस्पिशियस, हमारे मन में कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहे हैं ये, ठीक है, कि एक सेकेंड, अब यहाँ पे आते हैं थी ए रामलिंगम चेट्टियार, ये भी मद्रास से, ठीक है। अब कहते हैं कि जिस वट एवर वॉज डन हैज़ टू बी डन विद कॉशन, जो भी करना है ना बहुत ध्यान से करो, ठीक है। द कॉज ऑफ हिंदी,
अगर आप हिंदी के जो लेके आप बातें हैं इतनी एग्रेसिवली पुट करोगे ना, तो दूसरों के मन में बिटर फीलिंग्स तो आएंगी आएंगी। ठीक है, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना चाहिए, और किसी के ऊपर भी कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं डालनी चाहिए। तो दीज आर द 3 आर्ग्यूमेंट्स दैट वर बैलेंस्ड अप्रोच कह रहे थे जो। ठीक है, तो लेकर हिंदी को लेके बोल रहे थे। फिर श्रीमती जी दुर्गाबाई, दूसरी बार भगवान शंकर राव देव। ठीक है, ऐसे करके हमने याद किया था। तीसरे हो जाएंगे टी रामलिंगम चेटियार, इनकी स्टेट भी याद रखनी है बच्चों। अब मैंने आपको सारे बता दिए हैं। माइनॉरिटीज़ को लेके हमने बात की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लेके हमने बात की, दलित को लेके हमने बात की, ट्राइबल्स को लेके हमने बात की। ठीक है, अब लैंग्वेज को लेके हमने बात की है। ठीक, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेंस डिबेट डिस्कशन के बाद ये तैयार हुआ है। गिव एंड टेक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। कहीं भी हमारे पास अगर डिबेट डिस्कशन में प्रॉब्लम होती थी तो मिडल ग्राउंड देखते थे। एक ऐसा सेंट्रल फीचर था जो सबने अडॉप्ट किया, ये एमसीक्यू में भी आता है, वो है राइट टू वोट। राइट टू वोट फॉर एवरी एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ देयर लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है ना, और रीजन। उसके अलावा 21 साल से ऊपर को वोटिंग का अधिकार मिला था। ठीक है ना। फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था एक, जिसके तहत 21 से लेकर 18 कर दी थी वोटिंग की एज। चेक करना कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। फिर उसके बाद है, हालांकि देखो यूएस यूके इन यहाँ पे भी वोटिंग राइट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ एजुकेशन को दिया गया था, बट हमारे देश में तो आज़ाद होते ही सबको, वुमेन को भी बहुत स्ट्रगल के बाद वोटिंग राइट्स मिले थे, बट हमारे देश में सबको आज़ाद होते ही वोटिंग राइट्स मिले। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो इक्वली फेवर या फिर डिसफेवर, कोई भी हमारी स्टेट के लिए कोई भी धर्म सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, सपोर्ट करेगी सभी धर्म को करेंगे। ठीक है, इंटरफेयर करेंगे तो सभी धर्म में कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल डिसरेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन, ये हमारे इंडिया का कंसेप्ट है। वेस्टर्न में तो स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट है, स्टेट रिलीजन बिल्कुल सेपरेट, कहाँ पे, वेस्ट में। बट हमारे यहाँ इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल डिसरेस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी धर्म को हमने ऊपर नहीं रखा हुआ है, स्टेट रिलीजन नहीं है। इक्वल डिसरेस्पेक्ट का क्या मतलब है, अगर हमें सोशल जस्टिस लाना है, ठीक है, फॉर ग्रेटर सोशल जस्टिस धर्म में इंटरफेरेंस किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे सती, ठीक है, सती जैसी प्रैक्टिस अगर आज होती तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जैसे टेम्पल्स एंट्री, कहीं के टेम्पल एंट्री को लेके जो है सबरीमाला वाला केस हुआ था, उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। ट्रिपल तलाक देख लो, तो जहाँ पे भी सोशल गुड की बात होती है, ठीक है ना, सोशल राइट्स, तो वहाँ पे इंटरफेयर करता है। इस चीज़ को बोलते हैं क्या, इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए इंटरफेयर किया जा सकता है रिलीजन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कहाँ से कहाँ तक ये है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं 29-30, राइट टू इक्वलिटी है 14-16-17। स्टेट्स जो है डिस्टेंस रखती हैं अपने आप को रिलीजन से। बैनिंग कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं है। जहाँ स्टेट रन स्कूल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप, ठीक है, कि प्रेयर वगैरह करानी है। अगर स्टेट का स्कूल है तो ज़बरदस्ती आप प्रेयर वगैरह नहीं करा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, वो प्राइवेट में रहता है। ठीक, हालांकि हम थे जब हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में कभी ऐसा नहीं था, हमने प्रेयर वगैरह करते थे तो कभी इतना मन में आया भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, ये भी है। सेक्युलरिज्म पढ़ ही लिया, पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज नो एब्सोल्यूट सेपरेशन, हमारे यहाँ पे ये है, स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूटली सेपरेट जस्ट लाइक इन द वेस्ट। ये हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होते थे, नेगोशिएट किया जाता था, जो भी डिमांड्स होते थे उनको आर्टिकुलेट किया जाता था, रखा जाता था, मेक देयर डिमांड्स मोर क्लियर। ठीक, वी नीड टू अवेयर दैट द आइडियल्स इन्वोक्ड वर ऑफन रिवर्क्ड। ठीक है ना, जो भी बातें रखी जाती थी उनको रिवर्क किया जाता था ताकि इंडिया के कंटेक्स्ट में फिट किया जा सके। ठीक है, एट टाइम्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने आइडियाज़ को चेंज भी करती थी, टाइम के साथ साथ रीथॉट किया जाता था अपनी पोजीशंस को।
ठीक, ऐसा नहीं है कि एक वो व्यू पॉइंट बना लिया तो उसी पे टिके हुए हैं। टाइम के साथ अगर लगा कि भाई दूसरे का पॉइंट सही लग रहा है, कॉन्ट्रेरी व्यूज़, अपोजिंग व्यूज़ को भी साथ में रख के देखा जाता था। और अदर चेंजेस, वाइल अदर चेंज देयर व्यूज़ इन रिएक्शन टू इवेंट्स अराउंड, जो भी आसपास इवेंट्स हो रहे हैं सबको नज़र में रखते हुए, ठीक है, फिर डिसीजन लिया जाता था, कंसेंसस अचीव किया जाता था। दिस द एंड ऑफ द चैप्टर। और ये टाइमलाइन है, जो डेट्स है सिंगल याद रखेंगे। लेबर गवर्नमेंट आ गई थी 26 जुलाई। इधर कौन थे? एटली, एटली थे उधर, ब्रिटिश, एक ही इमेज में लिखा हुआ है ऐसे ही। उधर प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1946 के टाइम, याद रखना एटली थे। ये मुझे लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि बच्चा इतना इमेज पे ध्यान नहीं देता। एक आधी इमेज है इस चैप्टर में, देखना किस में लिखा हुआ है। इलेक्शन होते हैं 16 मई। कैबिनेट मिशन अनाउंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। देखो आता है ना कैबिनेट मिशन प्लान, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, CWC, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान। कब आता है? 16 मई को कैबिनेट मिशन प्लान। 16 जून मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है कैबिनेट मिशन को, ठीक है, अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं फिर वो। 16 जून को ही कैबिनेट मिशन रिप्रेजेंट स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, टेम्परेरी गवर्नमेंट सेंटर पे बनाते। 16 अगस्त, ये ऐसे पॉइंट व्यू, ये जो सॉरी ये जितने भी हमारे इवेंट्स हैं ना, ये क्रोनोलॉजी में आ सकता है, तो एक एक बार अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। डायरेक्ट एक्शन डे कब होता है? 16 अगस्त, मुस्लिम लीग, ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, 2 बार आ गया, इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर कांग्रेस इंटरिम गवर्नमेंट बना लेती है, एज नेहरू वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट मेड बाय द कांग्रेस इन 1946? 2 सितंबर ना भी बोले तो वाइस प्रेसिडेंट याद रखना नेहरू, ठीक है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द, नो प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट तो भाई गवर्नमेंट का उस टाइम पे ब्रिटिश ही था कोई, ये ध्यान रखना, ये शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट थे नेहरू, ये ध्यान रखनी है चीज़। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग डिसाइड टू ज्वाइन इंटरिम गवर्नमेंट, ये ऐसा मुस्लिम लीग का इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। 3 से 6 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये आ गया एटली। मीट सम इंडियन लीडर्स, टॉक्स फेल हो जाती हैं। 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशन, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे पहले फर्स्ट सेशन कब होता है? 9 दिसंबर को 1947 में। अब देखो 29 जनवरी मुस्लिम लीग डिमांड्स डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। मुस्लिम लीग का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्या डिमांड है हमें उससे मतलब भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 16 जुलाई, लास्ट मीटिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग कब होती है? 16 जुलाई 1947 को टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बनती है इलेक्शन के बाद, उसकी लास्ट मीटिंग है। जिन्ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, हमारे लिए नहीं है। 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कराची में। 15 अगस्त मिडनाइट इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। 1949 कॉन्स्टिट्यूशन इज साइन, दिसंबर में साइन होता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लेते हैं। केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को, इसीलिए। अब देखो क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। माइनॉरिटी को लेके पॉइंट आए थे याद, ठीक है। बी पॉकर बहादुर पटेल, BP, ठीक है, बी और धुलेकर, BDP था, हाँ। बी पॉकर बहादुर, धुलेकर, पटेल, गोविंद बल्लभ पंत और फिर एक और भी थे, ठीक है ना। और ये देखना बालकृष्ण ऐसे करके नाम है, तो आपको याद करना है, मैंने बता दिया आपको। टर्म माइनॉरिटी पावर टू प्रोविंसेस के पास, ठीक है, के स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन नहीं, के संतानम, सॉरी वो तो ग्रीन रिवोल्यूशन था। के संतानम कहते हैं ना, प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दो, ओवर बर्डन हो जाएंगे, डार्क फ्यूचर दिख रहा है, अब एजुकेशन कैसे देंगे, फाइनेंसिस नहीं है, कितने सारे पॉइंट्स बनेंगे। हिंदुस्तानी महात्मा गांधी ने बोला, अभी हमने देखा, हिंदुस्तानी तो बिल्कुल अभी लास्ट टॉपिक था। हिस्टोरिकल फोर्सेस विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया था। हिस्टोरिकल फोर्सेस कौन कौन सी थी? वही चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज अलाउ किया, हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लाए, कौन? स्वामी विवेकानंदा, ज्योतिबा फुले वाले पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें,
ये सब हिस्टोरिक फोर्सेस थी ना दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑपरेस ग्रुप्स को लेके SCs STs इन दोनों को लेके पॉइंट बना दो। ऑपरेस ग्रुप को लेके प्रोटेक्शन को किसने क्या क्या बातें की, जयपाल सिंह फॉर ट्राइबल्स। SCs को लेके BR अम्बेडकर, J नागप्पा, ठीक है, KJ एक और थे, फिर B से एक और आए थे, ठीक, BR अम्बेडकर और B से कौन थे, 2 भी हो गए थे ना। चलो देखना, अभी देखेंगे ऑपरेस ग्रुप्स। स्ट्रॉन्ग सेंटर की कौन कौन बात करता है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं, BR अम्बेडकर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर की, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी, अभी हमने देख लिया। एक बार जल्दी से इन्हीं के नाम देख लेंगे, या अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, घर पर आराम से देखते रहना नाम, ठीक है। हिंदी वाला हो गया था, ये था हमारा लैंग्वेज, ये भी हमने देख लिया।